प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना शुरू करेंगे। लेट अस प्रे एंड स्टार्ट द मीटिंग। Lorna, can you just pray and start the meeting? Yes, Uncle. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord. We thank you for this time, O Father. We thank you, O Lord, that you have given us this opportunity, O Father God, to come at your throne of grace and to worship you and praise you, O Father God. We thank you, O Lord, for each and every one who is connected and for each and every one that will join, O Father God. Yes, Lord, we thank you, O Father God. Help us, O Lord, to worship you, O Lord, with truth and spirit, O Father God. Yes, Lord, we submit each and everything into your hand, O Father God, and glorify your name, O Father. It's only because of your grace and your mercy, O Father God, that we are seeing, O Father God, that you have blessed us with this time, O Father, and we thank you, O Lord. We thank you and we praise you, O Lord. We ask this prayer in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
Yes, Lord, we thank you, O Father, and we rejoice, O Father, in today, O Lord, because it is only because of your grace and mercy, O Father God, that this day is added in our life, O Father. We thank you, O Lord, and each and every passing day, O Father God, we give glory to your name, O Father God. May you increase, O Father, in our life, O Father, and we decrease ourselves, O Father God. Yes, Lord. We trust in you and we hope in you, O Father God, and we glorify your name, O Lord. No matter what is the situation, what is the problem, O Father God, but still, O Lord, we choose, O Father God, to lift up our voice, O Father God, and to give praise and glory to your name, O Father, and to do each and everything that that pleases you, O Father God. Yes, Lord, help us, O Lord, to walk in your ways, O Father God. Help us, O Lord, to look up to you, O Father God, and help us, O Lord, that we may be reminded of your word, O Father God. Yes, Lord, we ask, O Father God, that you may, O Lord, cleanse us, O Father God, cleanse us from each and every sin, from each and every unrighteousness, O Father God, from each and every nature, O Lord, that is not pleasing you, O Father God, and not bringing glory to your name, O Father. We ask you, O Lord, to cleanse us clean, O Father God, and to make a vessel, O Father, that will, for your glory and for your kingdom, O Lord, so that you may use us, O Father God. Yes, Lord. Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will your robes be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for His presence bright? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will your robes be white?
Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for his presence bright and be washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Yes, Lord. Father, we thank you, Father, O Lord, for your blood, O Lord, that cleanses us, O Father God. Help us, O Lord, to introspect ourselves, O Father God, and see, O Lord, if we are being washed, O Father God, by your blood, O Father. If we are being cleansed completely, O Father God, from each and every of our wrong thing, O Father God. Yes, Lord. Help us, O Lord, that we may look into our lives, O Father God. Yes, Lord. Lord, because your days, the end days are near, O Father God. Your coming is near, O Father. So you prepare us, O Lord God, for your coming, O Father God. Yes, Lord, that we, O Father, will stand worthy in front of you, O Father God. So help, O Lord, that we may prepare ourselves, O Father, that we may prepare our soul, O Father, our mind and our body, O Father, for you, O Lord. Yes, Lord, we thank you, O Father, for this time, O Father. We thank you, O Lord, for the time of worship, O Father. Whatever word that will be shared, O Father, we even pray, O Lord God, that the prepare our hearts, O Lord, for your word, O Father God. Help us, O Lord, to align ourselves, O Father God, that whatever your word is been shared to us, O Father, help, O Lord, that according to that, O Lord, even our actions and our life may be, O Father God, in sync, O Father. Yes, Lord, we thank you and we praise you, O Lord. Lord, we also, Lord, we would pray for Anjali auntie, O Father God. Thank you, O Lord, yesterday as it was her birthday, O Father, and that you blessed her, O Lord God, that you took care of her for all these years, O Father, and this new year that you have added in her life, O Father. We thank you, we praise you, and we glorify you, O Father God, for her, O Lord God. Yes, Lord, bless her more and more, O Father, in the coming years, O Father. Use her more for your glory, O Father God, and help her to be an example to each and every person, O Lord, in and around her, O Father. Yes, Lord, we thank you and we praise you, O Lord. We give this time into your hands. We ask this prayer in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, Lorna, for leading us in worship. सभी को जय मसीह की और एक बार, और हम सब जिस शहर में रहते हैं, इस शहर को लगकर करीबी से हम सब ने एक साइक्लोन का अनुभव किया कल परसों 2 दिन से। परमेश्वर को धन्यवाद कि हम सब सुरक्षित है। क्या आप किसी को भी कलीसिया में से या बाइबल स्टडी में से किसी को भी ऐसे जानते जो इस साइक्लोन के कारण कुछ तकलीफ में हुए? ऐसा कोई है हमारे कलीसिया में? Do you know anyone in our church or in our Bible study who have been affected by the Bible study, the cyclone? So I hope all are safe. मैं विश्वास करता हूँ कि सब लोग, हमारे जान पहचान वाले लोग, हमारे कलीसिया के विश्वासी लोग सभी सुरक्षित है। प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर हम सबको सुरक्षित रखे, परंतु हम ऐसे कई लोगों के लिए प्रार्थना करना है जिनका घर मजबूत नहीं है, पतरे का घर हो या ऐसे अवस्था में रहते हैं जिनका इस तूफान के कारण वे तकलीफ में रहे या कुछ नुकसान हुआ उनका। ऐसे अनेक लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है, विशेष करके इस वक्त जब हमारे यहाँ पर तूफान शांत है। गुजरात में तूफान पहुंचा है, तो क्यों ना हम सब मिलकर कुछ देर प्रार्थना करेंगे। Let us all pray for some time.
विशेष करके इस साइक्लोन, इस तूफान के विरुद्ध हम प्रार्थना करेंगे, लोगों की सुरक्षा के लिए, गुजरात के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब जैसे प्रार्थना करते हैं, कोई भी एक आवाज उठा के प्रार्थना कीजिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु, आपने हमें इकट्ठा किया है इस तरह। हम परमेश्वर आपके सामर्थ्य के आगे, आपके पराक्रम के आगे हम झुकते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, आप परमेश्वर तूफान लाते हो और तूफान को परमेश्वर थम्बाते भी हो परमेश्वर। परमेश्वर, यर्मिया में लिखा है कि आप अपने भंडारों में से वायु को निकालते हो। हाँ परमेश्वर, ओले ओले आपने उस युद्ध के समय के लिए आपने संभाल के रखे हैं परमेश्वर आपके स्वर्ग में। हाँ परमेश्वर, परमेश्वर हम आपके आगे झुकते हैं, हमारे सरों को झुकाते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर उसके साथ हम दया मांगते हैं परमेश्वर। गुजरात में परमेश्वर कोई जान हानि न हो परमेश्वर, कोई घर टूटे नहीं परमेश्वर, ऐसा हम मांगते हैं परमेश्वर। परमेश्वर दया करो परमेश्वर, आप दयालु है, आप कृपालु है परमेश्वर। आप क्रोध करने में विलंब करते हो परमेश्वर। आप अपनी सृष्टि पर दया की दृष्टि रखते हो परमेश्वर। हम आपकी दया मांगते हैं परमेश्वर। जहाँ पे भी ये तूफान गुजर रहा है, वो क्षेत्र के लोगों पर आप दया करो परमेश्वर। अगर आप कोई पाप है तो आप क्षमा करो परमेश्वर, आप क्षमा करो। जैसे मूसा ने आपके आगे क्षमा मांगी इजराइलाइट्स के लिए परमेश्वर, हम आपके आगे क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। आप दया कीजिए परमेश्वर और उस तूफान को आप थमा दो परमेश्वर। आपकी आज्ञा हर जो कुदरत में जो कोई भी है, सब कोई मानता है परमेश्वर। समुद्र मानता है, बारिश या तो ओले या तो कुछ भी हो परमेश्वर, कोई जानवर भी हो परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं को मानते हैं परमेश्वर। आप उस तूफान को शांत कर दो परमेश्वर, ऐसा हम मांगते हैं। दया कीजिए परमेश्वर, दया की याचना हम मांगते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। हमारे देश में विशेष करके जो कोरोना वायरस का जो महामारी का जो परिस्थिति है, हम जारी रखेंगे प्रार्थना में अनेक उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो अपने परिवार में से कई लोगों को खोया है, कई लोगों के जान गए। और केवल लोगों के जान गए उतना ही नहीं, आप लोग सब जानते रहेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, हम सब अपने अपने घरों में जब रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, हमारे परिवार के साथ रहते हैं, तो हम डिस्कनेक्ट रहते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। हमें लगता है कि क्योंकि हम सुरक्षित है या हमारा जीवन में सब अच्छा है तो बाहर भी अच्छा ही होगा, ऐसा एक विचारधारा हो सकता है। दैट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। लेकिन यदि हम जानने की कोशिश करेंगे तो बाहर अवस्था परिस्थिति बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिला। बेड नहीं मिलने के कारण वे बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। कई लोग अपने अपने गाड़ी में रुके हैं बाहर, कैसे भी बेड मिले, एडमिशन मिले हॉस्पिटल में। क्यों
जरूरत है एडमिशन, ताकि उनको ऑक्सीजन मिले। और ऐसे बाहर रुकने के कारण उस लाइन में या उस अपने अपने गाड़ी में वे रुके हैं, वहां पर ही दम उनका वे तोड़ दिए। कई लोग अपने अपने गाड़ी में बैठकर जान गंवा दिए, ऐसे अवस्था। और उससे भी खराब अवस्था ये है कि जान गंवाने के बाद दफनाने के लिए उनको कोई जगह नहीं मिला, या अधिकारी लोगों का प्रबंध नहीं मिला दफनाने के लिए। ऐसे कई केसेस है जहां पर लोग अपना परिवार के एक सदस्य का जान जाने के बाद उस मरा हुआ क्या बोलते हैं, उस मरा हुआ शरीर को लेकर 14 घंटा, एक दिन उस घर में रखा है या अपने पास रखा है, दफनाने नहीं मिला। मैं एक न्यूज़ देख रहा था 2 दिन पहले, और मैं सच कहूँ तो मैं हिल गया उस न्यूज़ को देखकर। ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया है जो अपने परिवार के सदस्यों को खो दिए, और खोकर वे एक अंतिम जो अंतिम संस्कार होता है, जो फ्यूनरल होता है, वो भी ठीक से कर नहीं पाया। शव को लेकर जाने के लिए लोग नहीं है, अधिकारी लोग नहीं है, गाड़ी नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है उस शव को लेकर जाने के लिए। तो मैं वो देखकर मेरे मन में एक सवाल आया, क्योंकि उस इंटरव्यू में ऐसा भी एक व्यक्ति था जो एक वॉलंटियर बनकर लोगों को मदद करना चाहता था, और उसको एक खबर मिला एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि ऐसा एक व्यक्ति एक घर में राह देखकर बैठा है कि कोई तो आकर उसका परिवार का एक व्यक्ति जो मरा हुआ है, उसका शरीर घर पर पड़ा है, वो लेकर जाकर दफनाए। और 14 घंटा तक वो शरीर ऐसे ही पड़ा है, और वो व्यक्ति जो जिंदा है उस परिवार में, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। उसको पता नहीं चला क्या हो रहा है करके। he lost his mental stability because of that। और ये व्यक्ति जो वॉलंटियर कर रहा है मदद करने के लिए, वो वहां पर पहुंचा उस शरीर को लेकर जाने के लिए, और पुलिस के पास गए मदद मांगने, उसको मदद नहीं मिला। एम्बुलेंस बुलाने के लिए उसने फोन किया, तो एम्बुलेंस वाले कहा कि हम सिर्फ पेशेंट लोग को लेकर जाते हैं, एक मरा हुआ शरीर को हम नहीं लेकर जाते। ऐसे हर द्वार खटखटाया वो व्यक्ति जो वॉलंटियर है, लेकिन उसको कोई मदद नहीं मिला। मैं ये देखकर मेरे मन में एक सवाल आया अपने लिए, व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए, कि ये जो वॉलंटियर है जो प्रभु को नहीं जानता, क्या है ऐसा चीज जो उसको प्रेरणा करता है एक अजनबी का मदद करने के लिए, अपने सुख विलास को छोड़कर वो निकल पड़ता है ऐसे अनेक लोगों को मदद करने के लिए। वो यीशु को नहीं जानता। और मेरे मन में एक सवाल आया कि मैं क्या कर रहा हूं, हम मसीह लोग क्या कर रहे हैं। हम अपने आप के बारे में बोलते कि हम इस संसार में हम नमक है, हम इस जगत में ज्योति है। तो एक सवाल मन में आया कि क्या हम सचमुच का नमक बन रहे? Are we adding salt and flavor in people's life, or are we comfortable in our own homes? क्या हम मसीह लोग समाज में लोगों का सेवा परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा हम कर रहे? क्या हम सुसमाचार बांट रहे? क्या ऐसे
महामारी के समय पर या नेचुरल कैलामिटीज के समय पर समाज में जो लोगों को जरूरत है, जितना हमें हो सके क्या हम कर रहे हैं, या क्या हम इन चीजों के बारे में सोच भी रहे हैं कि काश मैं कुछ कर पाऊं, ऐसा एक विचार भी क्या आ रहा है हमारे अंदर, या हम अपने अपने जीवनों में हम संतुष्ट है? does even a thought cross over our mind, what can I do for them, or is there anything minimum that is in my capacity that I can do? Does that thought come to our mind? Can I pray for them? Can I at least, तो हम सब कुछ नहीं कर सकते। हम जो भी बाकी लोग कर रहे हैं वो हम करना ही चाहिए, जरूरी नहीं है, सबका बुलावट नहीं है, परंतु क्या हम सोचते भी है कि क्या हम कर पाएंगे कुछ भी? छोटे से छोटे चीज जैसा खाना देना जाकर, कोई रास्ते में पड़ा है तो जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूं। तो ये प्रश्न मेरे मन में आया अपने लिए, और हम सब मसीह परिवार के लिए, मसीह लोगों के लिए, तो क्यों ना हम इस अवस्था और इन परिस्थितियों के लिए हम प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको बदले, हम सबको जगाए, हम सबके अंदर एक ऐसा बोझ डाले जो यीशु के अंदर था। बाइबल सेज दैट ही वाज मूव्ड विद कंपैशन व्हेन ही सॉ पीपल। यीशु के बारे में वचन में लिखा है कि जब वो लोगों को देखा, वो भावनाओं से वो उनको वो लोगों की ओर आकर्षित हुआ। क्यों ना हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे अंदर वही भावनाएं, वही बोझ डाले जो यीशु में है, हम अपने अंदर बोझ को जगाए। परमेश्वर जो भी करना था वो परमेश्वर ने किया हमारे जीवन में। अब हम परमेश्वर का राह नहीं देख सकते या परमेश्वर को दोष नहीं लगा सकते कि उन्होंने बोझ नहीं डाला। हमें अपने अंदर एक बोझ को जागृत करना है, हमें एहसास करना है कि परमेश्वर हमें क्या जिम्मेदारी सौंपा है, हमें पहचानना है और उसके हिसाब से करना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे अपने आप के लिए और उन लोगों के लिए जो मर रहे, केवल उनको यीशु मसीह का जरूरत है, उन्हें उद्धार का जरूरत है। हम सब एक मनो के प्रार्थना करेंगे, कोई भी एक आवाज उठा के प्रार्थना कीजिए प्लीज। हालेलुया। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप पिता परमेश्वर, इस समय वो आपने हमें वापस ये दिया कि प्रभु हम एहसास कर सके, प्रभु पश्चाताप कर सके, क्षमा मांग सके पिता परमेश्वर। जिस तरह प्रभु आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, हमारे पाप तो बहुत है पिता परमेश्वर, अगर उनका आप हिसाब लोगे तो प्रभु हम आपके सामने खड़े नहीं रहेंगे पिता परमेश्वर, परंतु आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हो पिता परमेश्वर। हम सब एक मन होके प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु, आप हमें क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आप महान और सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर हो प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है मनुष्य से तो नहीं सकता पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपकी ओर ताकते हैं प्रभु, आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जिस तरह वचन में लिखा है कि आप सेनाओं की हम आप सेना हैं प्रभु, हमें तैयार कीजिए पिता परमेश्वर कि हमारे हृदय और मनों में प्रभु ऐसे बोझ को डालिए कि प्रभु हम निकल पड़े पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हर दिन सोचे इस विषय को लेकर
कि आपने जो हमें आज का दिन दिखाया वो हमारे लिए नहीं दूसरों के लिए दिखाया पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हमें हमारे लिए जो भी बुलाहट आपने रखी उसके अनुसार प्रभु आप हमें लेके जाइए पिता परमेश्वर। और प्रभु हम सबको प्रभु अपने अपने जो भी जीवन प्रभु उससे बाहर लेकर प्रभु अपनी और प्रभु बुलाहट की ओर लेके जाइए पिता परमेश्वर। आप पिता आप दयालु हो पिता परमेश्वर, आप करुणा में परमेश्वर हो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, लोगों के ऊपर प्रभु आप दया कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, बिना उद्धार पाए प्रभु कोई भी नाश ना हो पिता परमेश्वर। हर एक को पिता परमेश्वर आप बचा लीजिए पिता परमेश्वर। हर एक के पाप प्रभु आप क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आज हम बोल पा रहे हैं पिता परमेश्वर, ये आपका प्रभु अनुग्रह है प्रभु हमारे लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम सब एक मन होके आए हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप महान हो, आप सर्वशक्तिमान हो पिता परमेश्वर। आप दया कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, अब अनुग्रह का समय नहीं पर दया का प्रभु आप दीजिए प्रभु हमारे लोगों को पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन आमीन। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगी मैं सदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगी, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगी प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगी, होठों से स्तुति करूंगी मैं सदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगी। Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands unto thy name. I lift my hands unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. धन्यवाद परमेश्वर, जीवन से भी उत्तम है तेरी करुणा। Yes Lord. Father God, thy loving kindness is better than life. You have loved us with an everlasting love. आपने हमें एक अनंत प्रेम से प्रेम किया है। क्या है मनुष्य कि आपने हमें सुरक्षित रखा, कि आपने हमारी सुधि ली। Yes Lord, what is man that you are so mindful of us, O God? Thank you God. Your word says that we are like grass that was there yesterday and that withers today. We are like the flower that is there today and will not be there tomorrow. पिता परमेश्वर, हम घास के समान है जो कल था और आज नहीं, उस फूल के समान जो आज है और कल नहीं, परंतु आप हम पर दया दिखाए परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपने हम सबको ये दिन देखने दिया। हम जीवित है आज, जब हमारे दाहिने और 1000 और बाएं और 10,000 मर रहे परमेश्वर। हम हमारे जीवन में आपने क्या योग्य ऐसा देखा कि हम
आपने हमें जीवित रखा परमेश्वर। क्या वो इसीलिए नहीं कि हम आपके नाम के महिमा लोगों के बीच में करूं? क्या वो इसीलिए नहीं कि हम आपके सुसमाचार को बांटो, हमारे जीवन के द्वारा लोग उद्धार पाए, और हम अपने अपने घरों में अपने अपने घर बनाने में हम व्यस्त है परमेश्वर। हम स्वार्थी बने प्रभु, क्षमा कर परमेश्वर, और हमारे जीवनों को आप बदल परमेश्वर। यस लॉर्ड, एक बहुत बड़ा बेदारी को आप भेज प्रभु। सेंड अ माइटी रिवाइवल in each one of our lives, that we will be concerned about the perishing souls, कि हम उस नाश होने वाले उस आत्माओं के हम चिंता करें, हम प्रार्थना करें, हम उन तक पहुंचे। हमारे आजू बाजू हम उन सड़कों में अनेक लोग मर रहे परमेश्वर, जो भीख मांगने वाले लोग, और जिनके पास छत नहीं है, कपड़े नहीं है, जिनका मानसिक स्थिति सही नहीं है, वे रास्ते में मर रहे। और विशेष करके इन बरसात के बारिश के समय पर, ठंडी के मौसम में लोग मर रहे। पिता परमेश्वर, हम उन तक हमारे पैरों को आगे बढ़ाकर, हमारे मनों को तैयार करके हम उन तक पहुंचे प्रभु, पहुंचना चाहते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, आपने जो भी हमें दिया है, आशीष किया है, हम उनके जीवन में आशीष का कारण बनना चाहते हैं प्रभु। हम सबको इस्तेमाल कर परमेश्वर। जो भूखे हैं उन्हें खाना देने के लिए, जो नंगे उन्हें कपड़ों से ओढ़ने के लिए। यस लॉर्ड, पिता परमेश्वर, इन अंतिम दिनों में हम ऐसे चीजों को करने में व्यस्त रहे, ना कि हमारे फोन में, हमारे व्हाट्सएप में, फेसबुक में, टीवी सीरियल या ऐसे चीजों में हम अपने आप को व्यस्त ना रखें प्रभु। क्षमा कर परमेश्वर, आपने हम सब पर दया दिखाया प्रभु। यस लॉर्ड, हम उद्धार पाए हुए लोगों को आपने जीवित रखा, ताकि हम दूसरों के जीवन में आशीष का कारण बने प्रभु। यस लॉर्ड, जितने भी हम वचन पढ़ रहे, सीख रहे प्रभु, उसका हम जीवन में लागू करें प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। प्रेरितों का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 5, प्रेरितों का पुस्तक उसका 5वां अध्याय लेंगे, 17 वाक्य से पढ़ेंगे। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे, डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर बोर होते ही मंदिर में जाकर, बस तो 17 से 20 हमने पढ़ा, जहां पर लिखा है कि महायाजक और सदुकी लोग, शास्त्री लोग, व्यवस्था सिखाने वाले लोग, अधिकारी लोग क्या हुए, उनके अंदर क्या हुआ। 17 वाक्य में क्या लिखा है? महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे, डह से भर उठे। डह मतलब डर। They were filled with indignation. Okay? मतलब जलन हुआ उनके अंदर।
They were filled with indignation, jealousy, जलन हुआ। एक तरफ है जो प्रेरित लोग, यीशु के शिष्य लोग, वे पवित्र आत्मा से भर गए। दूसरे तरफ कुछ लोग हैं जो जलन से भर गए, क्रोध से भर गए। ओके, हमें तय करना है कि हम हमारे अंदर किस चीज से भरना है। ओके, हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा से अपने अंदर भरना है, उनका स्वभाव से भरना है। और ये शास्त्री लोग, वचन के पंडित लोग, अपने अंदर जलन भरकर क्या किया? अपना हाथ उठाकर प्रेरितों के ऊपर हाथ उठाया। 18 वाक्य पढ़िए। और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। हाँ, अंग्रेजी में लिखा है they laid their hands on the apostles and put them in the common prison। तो अपने हाथों को वे किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ओके, ये वही हाथ है महायाजक, शास्त्री लोग, सदुकी लोग जो परमेश्वर का वचन, व्यवस्था को सिखाते हैं, सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, और इन हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। वही अधिकारी लोग इन हाथों को आगे बढ़ाकर परमेश्वर के लोगों को बंदी गृह में डाल दिया, परमेश्वर के लोगों को मारना। ओके, तो हमारे हाथों को वचन सिखाता है कि हाथों को आगे बढ़ाकर इन पवित्र हाथों को, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है वचन में, पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करे, उनको, उनकी स्तुति करे। ये होना चाहिए, ना कि इन हाथों से हम गलत काम करें। ओके, आगे बढ़ेंगे। और जब एक तरफ व्यवस्था को सुरक्षित रखने वाले लोग, सुनाने वाले लोग जब हाथ बढ़ाकर प्रेरितों पर हाथ उठाते हैं, तब दूसरे तरफ परमेश्वर का स्वर्गदूत नीचे उतर आकर क्या करते हैं? 19 वाक्य। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर बस। परमेश्वर का स्वर्गदूत नीचे उतर आकर बंदी गृह को खोला, अपने लोगों को आजाद किया वहां से। ओके, तो परमेश्वर हमारे परिस्थितियों को समझता है, परमेश्वर कार्य करता है। ओके, कब करता है? जब हम अपना काम, हमारा जो कर्तव्य जो है वो हम करेंगे, तब परमेश्वर उनका काम करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम विश्वासी लोग हमारा काम नहीं करते और हम परमेश्वर को उनका काम करने के लिए याद दिलाते हैं प्रार्थना में। ओके, हम अपने कामों में, परमेश्वर ने जो काम सौंपा है, जो जिम्मेदारी सौंपा है, वो करने में हम व्यस्त रहे, तब परमेश्वर उनका काम करने में वो व्यस्त रहेगा, स्वर्गदूतों को भेजेगा। आमीन। यहाँ पर प्रेरित लोग परमेश्वर का उनके ऊपर सौंपा हुआ काम करने में पीछे नहीं हटे। ये कहकर कि हमें डर है, ये कहकर कि वे लोग हमें ऑलरेडी धमकाए। हमने 4 अध्याय में देखा था कैसे इन्हीं शास्त्री लोग, महायाजक लोग प्रेरितों को धमकाकर भेजा था कि इस नाम से फिर प्रचार न करना। तो प्रेरित लोग, यीशु के शिष्य लोग डर कर घर पर नहीं बैठे। परमेश्वर ने जो काम सौंपा
पवित्र आत्मा का सामर्थ जो पेंतिकोस्त का दिन उतर आया था, वो सामर्थ क्यों आया? परमेश्वर ने हम सबको पवित्र आत्मा का सामर्थ क्यों दिया है? पवित्र आत्मा क्यों दिया है? अपने अपने घरों में बैठने के लिए नहीं, जैसे हमने अभी प्रार्थना किया, हमें बाहर निकलना है, लोगों के अवस्था को देखना है, समझना है, और जरूरत क्या है बाहर वो पहचान कर परमेश्वर के दिए हुए वरदानों को इस्तेमाल करना है। वी नीड टू understand the need outside, and whatever gifts God has given us, we have to use it for God's glory. यदि हम वो नहीं करते तो मैं विश्वास करता हूं हमें कोई हक नहीं है परमेश्वर को उनका प्रतिज्ञा, उनका प्रॉमिसेस को याद दिलाना। अक्सर हम परमेश्वर के प्रॉमिसेस या प्रतिज्ञाओं को हम प्रार्थनाओं में उनको क्यों याद दिलाते हैं? जब हम तकलीफ में पहुंचते हैं, हमारे तकलीफ में हम परमेश्वर को उनके दिए हुए प्रतिज्ञाओं को याद दिलाते हैं, प्रभु हमें मदद कर। कितने स्वार्थी बनते हैं हम। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं अपने आप को शामिल करके बोल रहा हूं। हम सबको एक परिवर्तन का जरूरत है। हमारे मनोभावना बदलना बहुत जरूरी है। ओके, जब हम तकलीफ में है हमें परमेश्वर का प्रतिज्ञाओं को याद आता है, लेकिन जब हमारे पड़ोसी, मतलब इस हमारे समाज में, हमारे आजू बाजू जब लोग तकलीफ में मर रहे, उनके लिए हम परमेश्वर का प्रतिज्ञा को क्यों ना याद करें? Why don't we remember God's promises for the perishing souls around us and ask God selflessly? It's not about us, it's not about our lives. हमारा जीवन के बारे में नहीं है। हम निस्वार्थ होकर उन लोगों के जान बचाने के लिए हम परमेश्वर को उनके प्रतिज्ञा को याद दिलाए। हमारा जान को हम परवाह न किए हुए क्यों ना हम उस प्रकार से सोचना शुरू करें, क्योंकि हमारा जान यदि चले भी जाए तो वो केवल ये शरीर है जो नाश होने वाला है, क्योंकि हम तो बच गए, हमारा आत्मा तो उद्धार पाया है। हम एक आशा से जी रहे क्योंकि हमारा उद्धार हुआ है। हम दूसरों का जान बचाते बचाते हमारा जान यदि खोएंगे तो भी केवल शरीर को खोएंगे जो नाशवंत है। हमारा आत्मा तो हम अनंत काल के लिए उद्धार पाया है। So why to worry about our perishing body? हम जिस अध्याय पढ़ रहे हैं यहाँ पर प्रेरित लोग, यीशु के शिष्य लोग, वे अपने जान के परवाह न किए, धमकी पाकर भी वे अपने आप को खतरे में डालकर सुसमाचार को बांट रहे। क्यों? वे जान लिए एक चीज, हमने तो उद्धार पा लिया, लेकिन वे लोग अनंत काल के लिए नरक में जाएंगे यदि वे यीशु को नहीं स्वीकारेंगे। तो ये जानते हुए निस्वार्थ होकर वे सुसमाचार को बांट रहे, धमकी के बीच में अपने जान को खतरे में डालते हुए। और यहाँ पर महायाजक लोग और शास्त्री लोग, सदूकी लोग जलन हो रहे, क्रोधित हो रहे, नफरत का भावना को उनके अंदर बढ़ा रहे, इन प्रेरितों के खिलाफ कुछ भी कर सकते। ओके, और ऐसे समय पर जब प्रेरितों का जान पहले से ही खतरे में है, प्रेरितों ने
सुसमाचार फिर भी बांटा, और सुसमाचार बांटते वक्त उनको पकड़कर जेल में डाला। अब और भी खतरे में है उनका जीवन। तब भी एक स्वर्गदूत आकर जो कहा, वो प्रेरित लोगों ने सुना और आज्ञा पालन किया। फिर भी वे चुप नहीं बैठे। स्वर्गदूत आकर क्या कहा? उस जेल के दरवाजों को खोलकर, पढ़िए 19 वाक्य, सिस्टर पढ़िए। पर रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। मुझे ये घटना जब पढ़ते वक्त उसका प्रैक्टिकल सिचुएशन मुझे बहुत मेरे नजर के सामने आ रहा है। जब मैं यदि अपने आप को वहां पर डालूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रैक्टिकली समझे इस परिस्थिति को, अपने आप को उस जगह पर रखिए। क्या हो रहा है वहां पर? प्रेरितों का जान खतरे में है और स्वर्गदूत आकर उस जेल का द्वार खोलकर ये नहीं कह रहा है जाओ अपना अपना जान बचाकर अपने अपने घरों में जाओ, विश्वासियों के बीच में जाओ, ऐसा जान बचाकर जाओ करके नहीं कह रहा है। जेल का द्वार खोलकर स्वर्गदूत शिष्यों से कह रहा है जाकर मंदिर में जाकर प्रचार करो। जान खतरे में फिर भी प्रचार जारी रखो कह रहा है। ओके, मैंने कई बार ऐसे एडवाइस सुना है, किससे मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने एडवाइस सुना है। ओके, मेरे चाहने वालों से मैंने एडवाइस सुना है, ये कहकर कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूं और ये बुद्धि का एडवाइस है, इट इज अ वाइस एडवाइस। ओके, ऐसा कहकर मैंने सुना है बोलते हुए कि अभी अच्छा नहीं है कि जाकर आप ट्रैक्ट्स बांटोगे तो, क्योंकि माहौल खराब है। सुसमाचार जाकर सुनाएंगे तो माहौल खराब है, अभी थोड़ा दिन जाने दो, मामला ठंडा होने दो। ये बुद्धि की बातें हैं, सुना करो ऐसा करके। जब मेरा मन मान नहीं रहा था, मेरा मन कहता है कि तो क्या हुआ, लोग विरोध कर रहे थे, ऐसे समय पर हम करना चाहिए। हाँ, यदि परमेश्वर कहता है कि नो मत करो तो नहीं करना चाहिए। कई बार परमेश्वर पवित्र आत्मा पौलुस को भी रोका कि अब उस शहर में मत जाओ, वो शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाओ। देखिए, वो शहर में जाने से रोका, लेकिन प्रचार करने से नहीं रोका पवित्र आत्मा। दूसरा जगह पर जाओ, वहां पर करो करके। कहने का मतलब अक्सर ऐसा होता है कि परमेश्वर या पवित्र आत्मा प्रेरणा देता है कि करो, परिस्थिति विपरीत है तब भी। ओके, लेकिन हमें चाहने वाले लोग ना बोलते हैं। पतरस यीशु को बहुत चाहता था। ओके, यीशु जब गिरफ्तार होने जा रहा था क्रूस पर चढ़ने के पहले, ओके, यीशु के गिरफ्तारी के पहले पतरस ने इसी प्रकार अच्छे मन से यीशु से कहा, नहीं नहीं गुरु, आपको ये कभी नहीं होना चाहिए। तब यीशु ने पतरस को दूर हट जा शैतान ऐसा करके संबोधित किया। ओके, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो लोगों के भावनाओं को शैतान इस्तेमाल कर सकता है, अच्छे भावनाओं को।
हमें एक परख होना बहुत जरूरी है। पौलुस के जीवन में भी प्रेरितों का पुस्तक में आगे लिखा है कि पौलुस जब प्रचार कर रहा था तब एक व्यक्ति, मेरे ख्याल से एक लड़की या एक स्त्री वहां पर आकर पौलुस का लोगों के सामने वाह किया। ओके, ये प्रथम प्रधान परमेश्वर का दास है, ऐसा करके पौलुस ने पहचाना कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। उस दुष्ट आत्मा को पौलुस ने यीशु के नाम से डांटा। लोगों के सामने पौलुस परमेश्वर का दास है करके पेश कर रहा है। क्या वो अच्छी बात नहीं है? लेकिन परख होना बहुत जरूरी है। समय का परख होना, लोगों का परख होना, शब्दों का परख होना, भावनाओं का परख होना, ये बहुत जरूरी है। ओके, कब परमेश्वर हाँ कहता है, कब ना कहता है। तो यहां पर प्रेरितों को स्वर्गदूत आकर उस जेल का द्वार खोलकर ये नहीं कहा कि अपना अपना जान बचाकर घर जाओ, परंतु परिस्थिति विपरीत होने के बावजूद स्वर्गदूत ने कहा कि जाकर प्रचार कर। और प्रतिक्रिया उत्तर में प्रेरित लोग ने, यीशु के शिष्यों ने ये नहीं सोचा कि ये समय सही नहीं है, हम प्रचार नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं। जैसा स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर के उस धीमी आवाज को पहचानना हम अपने आप को सिखाना जरूरी है। ओके, तो प्रेरितों ने उनके आज्ञा के अनुसार, स्वर्गदूत के आज्ञा के अनुसार किया। 21 वाक्य पढ़िए। वर्स 21। वे यह सुनकर बोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। हाँ, तो वे प्रेरित लोग मंदिर में जाकर बोर होते ही मतलब सुबह का राह देखकर बैठा है, ऐसा देखिए, डर के बीच में, एक डर के माहौल में, विपरीत परिस्थिति के बीच में, भले हमें लगता है कि जाकर ये चीज करना ये सही है, तो भी कई बार हमें वो डर पीछे खींचता है। हम समय को टालते हैं, थोड़ा समय लेते हैं, अब नहीं, थोड़ा टाइम के बाद हम करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद देखने दो कैसा है परिस्थिति। प्रेरितों का मन में क्या चल रहा है रात के समय पर? ओके, क्योंकि जेल में से उनका छुटकारा रात को हुआ, हो सकता है बीच रात में, लेकिन स्वर्गदूत ने जब कहा कि जाकर मंदिर में जाकर प्रचार करो, तब प्रेरित लोग सुबह होने का राह देखकर बैठा है, कब मैं जाऊं। ये सोचकर नहीं बैठा है कि अब सुबह हो गया, मैं कैसे जाऊं, मैं थोड़ा दोपहर तक रुकता हूं, माहौल जरा मैं देखता हूं कैसा है, फिर दोपहर के बाद या शाम को या 2 दिन के बाद जाता हूं। ओके, स्वर्गदूत ने कहा ना जाने के लिए, मैं जाऊंगा लेकिन थोड़े समय के बाद। नहीं, जाने कहा, स्वर्ग से आज्ञा आया है, जाओ मतलब आज्ञा पालन करना है। ये था प्रेरितों का मनोभावना। ये मैं चाहता हूं कि हम सब समझे, हमारे अंदर कैसा मन होना जरूरी है। परमेश्वर ने कुछ कहा तो करना है। ओके, और उस आवाज को पहचानना भी है, ये बहुत जरूरी है। हम कई बार नहीं करते कुछ चीज, उसका ये भी एक कारण है कि हम आवाज को पहचानते ही नहीं। We do not recognize the voice of God. We do not recognize that God is telling us something. हम पहचान नहीं पाते। कैसे पता कि परमेश्वर ने कहा या नहीं? प्रभु की इच्छा को कैसे पहचानूं, कैसे जानूं? हम इन चीजों में कंफ्यूज रहते हैं कई बार। हम
क्या बोलते हैं, बेसिक चीजों में हम कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित लोग उस बेसिक चीजों से भी बढ़कर और भी आगे बढ़ चुके हैं जीवन में. They have gone far ahead in maturity with Christ, in recognizing the voice of the Holy Spirit, in recognizing which voice is of God and which is of Satan. They have matured in life in recognizing this voice, whereas there are some who are struggling even in basic things. Okay, हम कहां पर है? क्या हम मूल बातों में, जीवन के समान बातों में, साधारण बातों में हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं? Are we still struggling in our sins, or have we grown matured in Christ and have we moved ahead in our spiritual walk with Christ? क्या हम आगे बढ़ चुके हैं हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर के उस आवाज को पहचानने में? यूहन्ना 10वां अध्याय क्या कहता है? दूसरा वाक्य पढ़िए, यूहन्ना 10:2। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके पढ़िए। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। ओके, चरवाहा जब आता है तब भेड़ क्या करता है? उसके आवाज को सुनता है। करेक्ट, ऐसा लिखा है ना? शब्द को सुनता है, उसके शब्द को सुनता है। भेड़ चरवाहा का शब्द को सुनना चाहिए, ओके, और उसके आवाज को पहचानना चाहिए, सुनना चाहिए। पहला पहचानना है, ओके, पहचानेंगे तभी आप सुनेंगे, मतलब पालन करेंगे। जो चरवाहा कहता है उसके हिसाब से भेड़ करेगा, और चरवाहा अगुवाई करता है। पढ़िए, He calls his own sheep by name and leads them out. उसको बाहर चलाता है, लेकर जाता है। पढ़िए आगे। और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि भेड़ का काम है कि चरवाहा के आवाज को पहचानना, ओके, और उस चरवाहा के आवाज के अनुसार जो कहा उसके अनुसार करना। चरवाहा यदि बाहर ले चलता है तो भेड़ भी बाहर जाना है, भेड़ दूसरे तरफ नहीं जाना है, ओके। और पढ़िए आगे 4था वचन में। और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। तो उसका शब्द पहचानता है, ओके। प्रेरितों का पुस्तक में जो हमने पढ़ा, जब स्वर्गदूत आकर प्रेरितों को, शिष्यों को उस जेल में से बाहर निकालता है और कहता है कि जाकर मंदिर में जाके प्रचार करो, ओके।
ये परमेश्वर का वाणी है जो उन स्वर्गदूत के द्वारा प्रेरितों के पास आया, और प्रेरित उस आवाज को पहचानता है। प्रेरित या यीशु के शिष्य लोग और भी कई आवाज सुन रहे। ओके, कौन से आवाज? जेल के अधिकारियों का आवाज, महायाजक सदुकी शास्त्रियों का आवाज, धमकी का आवाज, उनको डराने वाला आवाज, भय लाने वाला, उनका जान खतरे में डालने वाला आवाज, ये सब उनको सुनाई दे रहा है। उसके बीच में परमेश्वर का आवाज को भी वो सुन रहा है कि परमेश्वर क्या कह रहा है। और इन सब आवाजों के बीच में प्रेरित लोग, यीशु के शिष्य लोग एक चुनाव कर रहा है। दे आर मेकिंग अ चॉइस कि हम परमेश्वर के आवाज का पालन करेंगे। हम डर का आवाज, धमकी का आवाज का पालन नहीं करेंगे। ये एक चुनाव है, ये एक चुनाव है। देखिए, हम ऐसे अनेक आवाजों के बीच में हम घेरा हुआ है। ओके, वी आर इन द मिडस्ट ऑफ फियर, वी आर इन द मिडस्ट ऑफ many such voices, insecurity. We are in the midst of pandemic, we are in the midst of cyclone, we are in the end times, we are in the midst of, look at your own situations in your personal life, in your family, हमारे जॉब के संबंधित, हमारे भविष्य के संबंधित, हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे बच्चों का स्वभाव, ऐसे अनेक चीज, हमारे पैसों का परिस्थिति, हमारे प्रबंध, घर में अनाज नहीं होगा, बहुत कुछ ऐसे परिस्थितियों के बीच में, अनेक आवाजों के बीच में हम जी रहे। ओके, क्या इन आवाज और परिस्थिति हमारे जीवन, हमारे जीवन को नियंत्रण कर रहा है? क्या हम अनुमति दे रहे हैं नियंत्रण करने के लिए? भय का परिस्थिति क्या हमारे अंदर भी भय ला रहा है? ये हमें अपने आप को जांचना है। यदि हमारे अंदर भी वो भय आ रहा है, तो हम अनुमति दे रहे इन आवाजों को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। हम इन आवाजों को सुन रहे और उसके पीछे जा रहे, भय के पीछे जा रहे, भय के आवाज, असुरक्षित आवाज के पीछे जा रहे। क्या होगा, ऐसा सवाल के पीछे हम जा रहे। लेकिन इन सब आवाजों के बीच में परमेश्वर का वचन हमारे कानों में कार्य कर रहा है। God is speaking to us. Do not fear, my son, my daughter. हे मेरे बेटे, मेरे बेटियां, मत डर, भयभीत मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हम कौन से आवाज को सुनेंगे? एक भेड़ चरवाह का आवाज को सुनकर उस चरवाह के पीछे जाएगा। ओके, भय से मत डरो, असुरक्षित परिस्थिति से मत डरो। ओके, 5वां वाक्य पढ़िए, यूहन्ना 10:5। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती है। यस यस, पराये का पढ़िए और एक बार, सॉरी। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, भेड़ जो है पराये के पीछे नहीं जाएगी, ना ही उसके पीछे भागेगी। Yeah, the sheep will by no means follow a stranger, but will flee from him. पराये से दूर भागेगा। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को जांचे, क्या हम पराये के पीछे जा रहे हैं? एक पराये आवाज,
ये भय का जो आवाज है, असुरक्षित परिस्थिति का जो आवाज है, तेरा क्या होगा, कल क्या होगा, खाना कहां से आएगा, ये सब जो सवाल हमारे अंदर है, मेरा जॉब का क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा, मेरा बेटी का क्या होगा, बेटा का क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, ये सब जो आवाज है जो हमारे अंदर एक भय लाता है, हमारा आशा को यू नो हमारे आशा पर वार करता है, ये एक पराया आवाज है। इट्स अ वॉइस ऑफ अ स्ट्रेंजर, और हमें इस आवाज के पीछे नहीं जाना है। ओके, हमें इस आवाज से दूर जाना है, और जैसा मरियम यीशु के चरणों में समय बिताया, हमें उनके पास जाना है, यीशु के पास जाना है, यीशु के आवाज को सुनने का एक आग्रह रखना है, और वो आवाज है चरवा का आवाज। ओके, प्रेरित लोगों ने क्या किया, यीशु का आवाज को पहचाना। धमकी के बीच में, भय के बीच में, जंजीरों के बीच में, जेल के अवस्था के बीच में, असुरक्षित परिस्थिति के बीच में परमेश्वर के आवाज को पहचाना। पराया आवाज जो है, जो महायाजक का आवाज है, सदुकियों का आवाज है, धमकी का आवाज है, वो आवाज को नजरअंदाज कर दिया। आई डोंट केयर। ओके, मैं परमेश्वर के आवाज को, मेरा चरवा का आवाज को मैं प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि वो मेरा सुरक्षा है। द लॉर्ड इज माई टावर, आई विल रन अनटू हिम। ओके, और वहां पर सुरक्षा है। प्रेरित लोगों ने आज्ञा पालन किया, आज्ञा पालन किया। ओके, अगले हफ्ते हम देखेंगे उनका आज्ञा पालन करने की वजह से प्रेरित लोगों ने सुबह होते ही मंदिर में जाकर प्रचार करने लगा, जैसा स्वर्गदूत ने कहा वैसा। और फिर क्या हुआ हम देखेंगे, कैसा परमेश्वर उनको सुरक्षित रखा। आज्ञा पालन करने में ही सुरक्षा है। लोगों के धमकी के नीचे, इन आवाजों के अनुसार यदि आप करेंगे तो ऐसा मत सोचो कि सुरक्षित रहेंगे। किसी ने धमकी दिया या भय के अवस्था में, परिस्थिति में आप उसके अनुसार आप प्रतिक्रिया करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, ऐसा न सोचो। ओके, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करते वक्त अंजलि के लिए भी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने 1 साल और उसको सुरक्षित रखा और एक ये नया साल देखने दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। हम एक मन होके प्रार्थना करेंगे। कोई भी एक आवाज उठा के प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर। हाँ प्रभु, अभी तक आपने हमसे बातें किया, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती खुदा, क्योंकि हम आपकी आवाज सुनकर आपके पीछे होने वाले बनाइए परमेश्वर, हमें ना कि इस संसार के पीछे। प्रभु प्रभु हम आपका आवाज पहचाने परमेश्वर, और हमारे अंदर का जो डर है वो निकाल दीजिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, इस संकट के समय में परमेश्वर, इस पेंडेमिक के समय में प्रभु, आप ही हमारा आधार बनिए करके प्रार्थना करते, और जिनका आधार कोई नहीं है परमेश्वर, उनका भी आप आधार बनिए करके प्रार्थना करते खुदा। उन सभी को आप संभाल के रखिए परमेश्वर, जो संकटों से गुजर रहे हैं परमेश्वर, जिनको हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन की वजह से उनका डेथ हो रहा है परमेश्वर, उन सारे लोगों को प्रभु आपके चरणों में रखते खुदा। आप परमेश्वर हमें भी कुछ तो उनके लिए करने का जैसे मन दीजिए प्रभु, कम से कम उनके लिए प्रार्थना करने का जैसे हमें सहायता कीजिए। हम कंटिन्यू उनके लिए प्रार्थना करें पर खुदा, हम आप वो दया करुणा उन सारे लोगों के ऊपर रखिए। और प्रभु आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। उसी तरह प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ अंजलि सिस्टर के लिए परमेश्वर, उनका जीवन में अपने एक नया साल जोड़ा है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। उनको आशीषों से भर दीजिए, आपके वचनों से, आपके पवित्र विजडम से उनको भर दीजिए करके प्रार्थना करते हूँ। उनका फैमिली को, उनको, उनके सारे घरानों को आपके आशीषों से भर दीजिए। उनका मम्मी पापा को सेलिब्रेशन दीजिए, और उनका जो भी इच्छा है परमेश्वर उनको आप पूरा कीजिए।
उनका पूरा फैमिली को आपके हाथों में सौंप कर उनका बर्थडे को आप आशीषित कीजिए करके प्रार्थना पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। Praise God. Happy birthday, Anjali sister. Thank you so much. Thank you for prayer. हैप्पी बर्थडे अंजलि सिस्टर। Thank you, sister. Thank you so much. Thank you, brother.